वादे ही वादे, उन्हीं वादों पे फिर से वादे, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। The road this election jaded, tad unpredictable, a little unlike what is usually an electoral carnival. The word on the road, इस बार चुनाव थोड़ा ठंडा है. 3 phases have gone to vote. Over 50% of parliament seats have already voted. But in the state that defines the country's politics, Uttar Pradesh, the games have only just begun. Till now, only 27 of the 80 Lok Sabha seats have gone to the hustings. And the cliche holds true. With 80 seats, the road to Delhi leads from Lucknow. With 80 seats out of the 543 in Lok Sabha, 403 in the Assembly and 31 of the 245 in Rajya Sabha, besides a 100-member Legislative Council, Uttar Pradesh, with its over 15 crore voters, carries more weight than any other state in the country's politics. Pro-establishment मंदिर बना दिया सरकार ने, जो धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति तो कोई है नहीं, ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस का शिकार हुआ था। राजनीति में हम लोग प्रजातंत्र में रह रहे हैं, बिल्कुल, तो हम लोग सबसे बेस्ट चुनेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं मिल सकता। पहले की नियुक्तियां अगर आप देखेंगे, इतना भ्रष्टाचार है उसमें ना मैम। जब पिछली सरकारों ने सारा व्यवस्था कबाड़ा कर दिया है, तो उसको अगर आप लोगों को लगता है कि समय लगेगा ही मैम। anti-establishment. मंदिर में हम जाकर बैठ के क्या करेंगे? जब हमको आगे आइए, जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो मंदिर बैठ के क्या करेंगे? मंदिर हमको खाने पीने को थोड़ी नहीं देगा। 2014 से पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो हर 6 महीने बैंक की सर्विस आती थी, आर्मी की आती थी, ये रेगुलर वैकेंसीज थी जो हर साल आती थी, लेकिन ये नहीं आती है। वैकेंसीज थी और आज के इस बार नहीं लग रहा। आपकी सरकार आने के बाद वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है? वो वैकेंसीज कहाँ गई? And the angst of the youth. आज ऐसा हो गया है कि उसी एग्जाम का प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ, जिस एग्जाम का प्रिपरेशन मेरे 10 साल बड़े भैया कर रहे हैं। आज सेम वही सिचुएशन हो गई, जो 10 साल बड़ा है और जो 10 साल छोटा है। To the swag of what is Prayagraj. रंगबाजी माने जो रंग के साथ चलेगा, आज फैला के चलेगा, चौड़े से चलेगा, न सरकार को सेठे न पुलिस को सेठे। On that note, we move towards Kaisarganj and Gonda. The political landscape changes dramatically this side of the Ghaggar River. Part Awadh, part the beginning of Purvanchal, part what is locally called the Badlands of Uttar Pradesh, where this is the area of influence of the Bahubalis of UP or their milder versions, the local Dabangs. किस चीज के लिए प्रसिद्ध है गोंडा? गोंडा गुंडाई के लिए प्रसिद्ध है। गोंडा गुंडाई के लिए प्रसिद्ध है। पहला बच्चा आपको गुंडई में होना चाहिए, गुंडाई में जो होना फैमिली चाहिए। को सपोर्ट प्रोवाइड करे। हाँ। सेकंड होता है आपका जो पॉलिटिकली थोड़ा आपको स्ट्रेंथ प्रदान नेतागिरी करे, होनी नेतागिरी होना चाहिए। गुंडाई नेतागिरी। और तीसरा आपका जैसे इंजीनियर्स हो गए, यूपीएससी क्रैकर्स हो गए या मेडिकल के क्षेत्र में हो गए। Welcome to Gonda with a quick crash course on what was his version of a complete family in the 90s in this region. Kaisarganj and Gonda, traditionally the fiefdom of controversial Mussalman Brij Bhushan Singh, the cradle of Thakurwad or Thakur politics. Brij Bhushan, the product of Mandir politics, with a Bahubali Robin Hood image.
हमारी हमेशा कोशिश रहती है। A six-time member of parliament, Brij Bhushan is the current MP from Kaisarganj, facing grave allegations of sexual assault by our Olympian wrestlers. Yet, he continued to remain MP. Brij Bhushan's influence over Kaisarganj and Gonda lurks in its every corner. कैसरगंज की माला मोदी के नाम से जाएगी, इस बात के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। The conversations of Delhi or urban cities eclipsed by feudal allegiance, or fear of the feudal lord. This is the only college here, part government, part private owned in Gonda. 2 of the assembly seats of Gonda are with Kaisarganj Lok Sabha seat. The students here, angry, disappointed, or falling through the crevices of governance. सब पास पास रहते हैं या दूर रहते हो? दूर भी रहते हैं, पास भी रहते हैं। हम लोग आते हैं। सभी टीचर बनना चाहती हैं यहाँ पर? अच्छा अब बताओ, यहाँ पर कब तक शादी कर लेते हैं? मैम गांव में 18-19 तक कर देते हैं। तो फिर बोला है माता पिता को? यस मैम, 25 से पहले नहीं करेंगे। मान लिए हैं 25 के पहले? पढ़ाई पूरा होने के बाद ही शादी करेंगे। पर गांव में कह रहे हो अभी भी हो जाती है? यस मैम, हो जाती है। 18-19 में ही कोई? उससे पहले भी कोई कोई कर देता है। कितने इस बार वोट डालेंगे? हाथ खड़े कर लीजिए जो वोट डालेंगे। क्या सोच के वोट डालोगे? अपना देश का विकास हो अच्छे से, और लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी हो, ये सोचकर हम वोट डालना चाहते हैं कि एक अच्छा नेता चुने जो हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए और हम लोगों की लड़कियों की सेफ्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का साथ दे, रोजगार के लिए, और एक सही नेता चुने। आप में से कितने लोग बृजभूषण सिंह जी को जानते हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। आपके यहाँ के सांसद है ना, वो पसंद है? हाँ पसंद है, वो अच्छे से बिहेव करते हैं सबसे। बृजभूषण शरण सिंह पसंद है, क्यों पसंद है? 2022 में हाई स्कूल फाइनल किए थे, हमारा अच्छा नंबर आया था, तो हमको उनके स्कूल में सम्मानित किया गया था, और वो चाहते कि हमारे देश की लड़कियां जो है सबसे आगे बढ़े, खेल में प्लेयर भी बने, सब कुछ चाहते हैं कि अच्छा रहे, लड़कियों के हित के बारे में ज्यादा सोचते हैं इसलिए। चलो जी, आपको जाना है ना, नीट का कल एग्जाम है, गुड लक। थैंक यू मैम, फुल मार्क्स लेके आओ आप लोग। कंटिन्यू, इधर ही बैठ जाओ। जाओ सत्यम। In government colleges in smaller towns or towns which are completely cut off from the big metros, there's a clear divide, the girls and the boys. Let's speak to the boys right now. आप में से कितने लोग हैं जो वोट देंगे इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा जहन में क्या है? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि सबको जो उनकी नौकरी है कि उन्हें रोजगार के अवसर अधिक मिले। वोट गिरेगा रोजगार पे, क्योंकि हम बहुत लोगों से मिले हैं, लड़कों से मिले हैं जो कहते हैं रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, पर उस पे वोट डलता है। कुछ एजुकेटेड हैं वो लोग रोजगार पे जरूर जाते हैं, बाकी जो लोग मतलब जैसे जो हल्का अशिक्षित हैं वो धर्म और जाति पे ज्यादा जाते हैं। शिक्षा के मतलब शिक्षा गोंडा में विश्वविद्यालय आया लेकिन नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्या यहाँ पे जगह नहीं थी? गोंडा में विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? मेरे गोंडा में विश्वविद्यालय, टेक्निकल कॉलेज, कोई फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार को कहते हैं राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर एक नहीं सैकड़ों बनवा दीजिए, उससे कोई फायदा हो। कोई भी पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। ये क्या सिस्टम है? ईवीएम मशीन से वोट डलवाते हैं, उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। विश्वास नहीं है? जहाँ पे ईवीएम मशीन का आविष्कार हुआ उस देश में ईवीएम मशीन पे चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। आविष्कार जापान ने आविष्कार किया। आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम मशीन पे गड़बड़ी है? जैसा भाई ने अभी बताया कि राम मंदिर बनने से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, मैं अभी कुछ दिन ही पहले ही गया था राम मंदिर। वहाँ पे जो इन्होंने किया, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, जो वहाँ पे लॉकर सुविधा उपलब्ध कराई है, चप्पल जूते रखने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। वहाँ पे हजारों लोग नौकरियां कर रहे हैं। खुश हैं सरकार से? मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं बदलनी चाहिए। वो सबसे पहला मुद्दा कि धर्म पे धर्मवाद न करे मैम। बाकी सिक्योरिटी के मामले में और कई मामलों में सरकारी काफी बेहतर परफॉर्म की है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है गोंडा? गोंडा गुंडाई के लिए प्रसिद्ध है। गोंडा गुंडाई के लिए प्रसिद्ध है। गुंडाई कम हुई है कि नहीं हुई? नहीं, गुंडाई बहुत ज्यादा कम हुई। बीजेपी एक तरीके से हमारे लोग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसलिए परफेक्ट है क्योंकि हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो इतनी योग्य नहीं है कि जो हमारे पूरे जो है कंट्री को संभाल पाए, इसलिए हमारे लिए बीजेपी परफेक्ट है। चलिए,
बहुत शुक्रिया। एक ये बता दीजिए, आप में से कितने लोग बदलाव चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। बदलाव, परिवर्तन, सरकार का परिवर्तन। सरकार का परिवर्तन फिर और कौन सा बदलाव है? अच्छा, विकास। In this remote college in Gonda, we find a handwritten copy of India's constitution. हमारी तो खाली एक मांग है, इसके पीछे जो हमारी लड़ाई है, जो मंशा है कि भारत सरकार देश में 18 वर्ष पर एक नागरिकता दिवस का आयोजन करे और हर जनपद में, हर डिस्ट्रिक्ट में उस 18 वर्ष के युवा को भारत का संविधान सरकारी स्तर पर दिया जाए। थोड़ा सा यहाँ का कल्चर क्या है गोंडा का, बताइए। मिठास भरा हुआ कल्चर है। राम के बगल है, भगवान राम नगरी के बगल है, मिठास से भरा हुआ कल्चर है। आपका भी स्वागत है, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर इस बार क्या देख रहे हैं? भाजपा लहराएगी, देखना क्या है उसमें। यहाँ 80% भाजपा ही है। जो पहलवानों का कंट्रोवर्सी रहा ब्रिजभूषण जी को लेकर, वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। नहीं, जो प्रत्याशी है हमारा, उस पर तो कोई आरोप नहीं है ना। जनता के बीच उपलब्ध है, युवा हैं, हम स्वागत करते हैं बीजेपी के निर्णय को। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सब चीज आज शांति से चल रहा है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। देखिए आप सामने सड़क पर लाइटें लगी हुई हैं, पुल बने हैं, सड़क बनी है, पसंद करती है। राजा भैया राम मंदिर बन गया है। हाँ, इस बार मोदी जी की सरकार होगी और 400 पार। बहुत आप लोग हमसे चाय ली ना, चाय लेंगे जी। अरे चलिए, हाँ जी, यही है मेरा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया चाय। राजा भैया, राजा भैया। क्या सोच के वोट देंगे? विकास यहाँ पे देखिए, रोड कितनी पतली है, चौड़ी रोड नहीं है, गाड़ी वाड़ी सही से चल नहीं पाती है, आए दिन एक्सीडेंट होता है कोई ना कोई का। विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। विकास हुआ है? हाँ, विकास तो पहले से ही कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है। जिस तरह देश में लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेंगे। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार से। आप बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई है आपके? लोकतंत्र की लड़ाई है, भाईचारा और एकता, देश में जिस तरह का नफरत का माहौल है उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हम लोग साथ देंगे और मोहब्बत की दुकान खोलनी है, कांग्रेस को वोट करना है। बहुत शुक्रिया। The Kaisarganj seat, mostly rural. It's in this village that we find the local internet की आवाज। किसको वोट दिया था पिछली बार? किसको वोट दिया था? मोदी का। मोदी को वोट दिया था। कुछ योजनाओं का लाभ आप मिला आपको? The popular 23-year-old duo, Satyam Mishra and Rudra, reporting this election from Gonda. अपना फायदा खोजती है, दूसरों का फायदा कोई नहीं देखने जाता। चलिए पहले हम आपसे बातचीत करें। कहाँ, उधर चले जाए? चलिए उधर चलो, आइए। क्या लोकल क्या चलाते हैं? चैनल चलाते हैं? डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट की आवाज नाम है। 2 सालों से जब कोरोना काल आया, उस समय आइडिया आया कि इंटरनेट पर जब सारी बातें उठ रही तो इंटरनेट की आवाज बना दी जाए। क्यों ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए? अपना गोंडा जो है ये सामंतवादी क्षेत्र है, जो लगातार सत्ता पे विराजमान है, वहीं बने रहना चाहते हैं, उनकी पीढ़ियां बनी रहनी चाहती हैं और कई सारी मुद्दे यहाँ पर छूट जाते हैं, तो इसीलिए सोचा कि कुछ किया जाए हम लोग भी। जो सैलरी है सब निकल जाता है ठीक ठाक? फिलहाल सैलरी पर नहीं, काफी त्याग कर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि अपना ये प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर आगे बढ़ना है। ये बताइए, आप तो गए होंगे गाँव कौन आगे चल रहा है? कैसरगंज में करण भूषण चुनाव में आए हैं, उनके लड़के हैं और ब्रिजभूषण सिंह का एक अपनी जो राजनीतिक पैठ है वो काफी अच्छी है। चुनाव कौन और जातीय ही लड़ रहे हैं? चुनाव बिल्कुल ही ब्रिजभूषण ही लड़ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे करण का कोई राजनीतिक इतिहास तो है नहीं जी। पूरा उनका कंट्रोवर्सी है पहलवानों को लेकर, जो उन पे आरोप लगे हैं, अब वो कोर्ट में भी है। यहाँ पर कोई उसके बारे में चर्चा है? उन आरोपों की चर्चा धरातल पर उतना नहीं दिखती है जितने बड़े आरोप हैं जी। तो यहाँ की राजनीति खुद कैसे देखते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे वोट करने के लिए, आपसे पूछते हैं? बेरोजगारी तो है, ये कहा जाए। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग पाई जिस तरीके से
तमामों बार सांसद रहे, 4 बार कीर्तिवर्धन जी रहे, उनके पिताजी रहे, कुछ करना चाहिए उनको। इंटरनेट की आवाज के लिए बेरोजगारी सबसे नंबर 1 है। हाँ, बेरोजगारी है। आपके लिए भी बेरोजगारी मुद्दा है। ये वीडियो था जो हम लोगों ने कैसरगंज। बताइए। और बीजेपी ही जीतेगी। ब्रिजभूषण ने कुछ नहीं करवाया है। ब्रिजभूषण खड़ा हो जाए चाहे जो खड़ा हो जाए, मैं कुंवर देख के खाली बीजेपी कहीं। चलिए फिर अगले चुनाव में मुलाकात होगी। बिल्कुल। इंटरनेट की आवाज से। The BJP has cut the ticket of Kaisarganj sitting MP Brijbhushan Sharan Singh. Instead of him, the BJP has fielded his son, Karan, from the seat. Karan Bhushan Singh is the youngest son of Bhushan. It takes us a while to convince Karan Singh for an interview. Finally, his cavalcade of 51 Fortuners stops. Yes, 51 white Fortuners. करण जी, चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। कोई अंदाजा था आपको टिकट मिलेगा? ये अंदाजा तो कोई नहीं था, लेकिन एक ये था कि इन फ्यूचर आगे की प्लानिंग ये कुछ नया था, थोड़ा जल्दी था। थोड़ा जल्दी था, नहीं तो मतलब पॉलिटिक्स में ही निकलने का। नहीं, देखिए, अब पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो अगर आप कोई चीज में आ जाए तो उसको छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। पर यही आपका हमेशा से रहा है कि अपने फादर के फुटस्टेप्स में पॉलिटिशियन ही बनना है? ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। पर थोड़ा जल्दी आ गया, इस बार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? प्रिपेयर तब भी थे, अब भी प्रिपेयर है, उस बात के लिए भी प्रिपेयर थे। अब भी प्रिपेयर हैं, बाद के लिए भी प्रिपेयर थे। किस दिन पता चला? बिल्कुल मतलब उसी दिन पता चला कि आपको टिकट दे दिया गया है, या थोड़ा आइडिया था कि हो सकता है? सेम डे मीडिया के थ्रू ही पता लगा, तो उस टाइम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। फिर शाम तक जब क्लियर हुआ फिर कंफर्म हो गया कि हो गया टिकट। चाहते थे कि आपके पिताजी को ही टिकट मिले इस बार? हाँ, चाहता था मैं। आप वही चाहते थे? पर डिसअपॉइंट हुए कि नहीं मिला? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। जैसे जनता का प्यार अभी भी उतना ही मिल रहा है जितना पिताजी को मिलता था। बस एक मन में था कि मैं चाहता था कि मेरे पिताजी को टिकट मिले। ये उनका गृह भूमि है, 35 ईयर से सिटिंग एमपी है, और ये पार्टी का जो निर्णय है सबको उस पर। पिताजी का आशीर्वाद है? अरे बहुत ज्यादा। बेटा उनका आशीर्वाद बहुत है। आप एक युवा नेता हैं, अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, चलिए आप कह रहे हैं पहले आ गया, पर एक चार्ज आप पे भी लगेगा। कहते हैं ना, जो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है कि आप फीड कर परिवारवाद, इन्होंने बता दिया पीछे खड़े होकर, तो उसको अब वो तो आरोप लगेगा आप पर, तो उसको कैसे मतलब अपने आप को आपको और प्रूव करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, परिवारवाद की कोई बात नहीं, ये पार्टी का निर्णय था और ये हमारा घर है। मैं घर में आशीर्वाद लेने निकला हूँ और ये लोकसभा घर है, एक परिवार है, मैं परिवार के बीच में निकला हूँ। लगता है थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं, जो सारा प्यार है, ये तो आपके पिताजी के लिए है। अब आपको अपना खुद जमीन बनानी पड़ेगी, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। बना पाएंगे? नहीं, जरूर बनाएंगे। देखिए, जैसे जब पिताजी का चुनाव चलता था तब भी हम लोग मेहनत करते थे क्षेत्र में। 5 साल हम लोग यहाँ क्षेत्र में रहते थे, तो जनता का प्यार तब भी था, जनता का प्यार अब भी है। मैं इन्हीं के बीच का हूँ, इन्हीं के साथ का हूँ, यहीं का बेटा हूँ। करण, आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपने जो पिताजी की लेगेसी पे लड़ रहे हैं, या आपके खुद के मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो भी मुद्दे हैं वो सब हमारे मुद्दे हैं। जो भी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और वो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। आप युवा भी हैं, तो क्या एक नई सोच लेके आएंगे, कुछ अलग करेंगे? एक युवा नेता होने के, जो पिताजी ने किया उससे अलग क्या करेंगे? मैं उनके नेतृत्व में और प्लस भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं, अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि जमीन पे लागू हो। बस इसी के साथ यही मोटिव है मेरा, यही मुद्दा है। बाहर पढ़ के आए हैं, वहाँ से कोई सीख जो यहाँ पर लागू करेंगे? अब एक ट्रायल है, इसमें देखा जाएगा जो एडजस्ट हो जाए। क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो आपके खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं, जो आपको लगता है यहाँ पे होना चाहिए, पहले नहीं था? डिपेंड करता परिस्थितियों के ऊपर, जो जिस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। पर कोई नई सोच सबसे बड़ी चीज तो विकास है। और जैसे हम लोग ने बहुत चीज बाहर देखी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पे लागू करानी है।
वेल मैनेज करना है, बस यही सब। क्या है जो अभी यहाँ पर नहीं है कैसरगंज में जो आप लाना चाहते हैं? सब है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमी। मैं क्षेत्र में, आज मेरा पहला दिन था, कल नामांकन था, क्षेत्र में था, बहुत प्यार मिला। कहीं से भी एक ये नहीं आई कि किसी चीज की समस्या हो। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है। छठी मतलब क्योंकि आपकी जो फैमिली लेगेसी है, 6 बार यहाँ से ही है, 5 बार भाजपा से ही MP रहे हैं, तो वो लगता है वो लेगेसी काम आएगी? जरूर। आखिरी सवाल करूंगी, धरातल पे हमने मुद्दा नहीं है, पर आप युवा नेता हैं, आपके पिताजी पे आरोप हैं जो संगीन है, कोर्ट में केस चल रहा है, मॉरली उसको देखते हैं? वो सारे मामले न्यायपालिका में हैं, उसमें मैं उचित नहीं हूँ, उसमें पढ़ना चाह रहे हैं। The day has ended for us. Karan Bhushan's cavalcade has sped away. If I were in Delhi, there would be so much I would struggle with. The harassment charges of Bhushan, his son getting a ticket, me covering his constituency, which clearly, despite his son fighting it, has him on the ticket. But the lines here blur. To understand who Brij Bhushan is, I have to understand why Brij Bhushan is. And the answer is in the people here. It's in the respect, love, and fear that he commands. Go. This is Nandanipur. It's here that Bhushan runs a world-class wrestling institute. State-of-the-art training stadiums, ace coaches, gyms, physiotherapists, proper diet, nutrition for athletes. And it's free for national players and only 3,000 rupees a month for those who want to train here. To be honest, it's a little surreal, keeping in mind the number of shows that I have done in support of our women wrestlers, to be here and covering this academy of Brij Bhushan Singh Sharan. But sometimes you've got to be a journalist before you're a woman. You have to keep aside what you think is morally and ethically right to understand the complexity of a story or a character. The character here, the cult status that Brij Bhushan Singh Sharan enjoys in Kesarganj and Gonda. ये जो पूरा सेंटर है, ये किसने बनाया है? पूरा सेंटर नेताजी ने बनाया है, सांसद ब्रिज भूषण शरण सिंह जी। जो पूरा सेंटर बनाया है, इसमें जो बच्चे आते हैं, क्या सबके लिए फ्री है सारी फैसिलिटी? नहीं, सबके लिए तो नहीं फ्री है, लेकिन जो बच्चे नेशनल में मेडल देते हैं, इंटरनेशनल मेडल देते हैं, उनके लिए फ्री है। पूरा फ्री है, सब पूरा फ्री है। रहना फ्री होता है उनका? रहना फ्री, पढ़ना फ्री है। पढ़ाई भी होती है यहाँ पर? हाँ, पढ़ाई। क्या पढ़ाई होती है? तो जो बच्चे 6 से हैं आते हैं तो उनका पढ़ाई फ्री है। BA इंटर वालों को जो नामनी फीस है वही लगती है। यहाँ से कोई बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं, निकले हैं? बजरंग पुनिया ही निकले थे मैडम, और वही नेताजी के साथ दगा कर गए। बहुत शुक्रिया सर, बच्चों से बात कर लेते हैं। कैसे करना है? यहीं पे करेंगे। आप बैठ जाओ यहीं पे। कहाँ से यहाँ पर बच्चे आते हैं? जी हमारे यहाँ तो मतलब पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। कितने साल के हो? 13। पहलवान बनने आए हो? फ्री है? फ्री है। और जो नेशनल लेवल के हैं? जो नेशनल लेवल के हैं। और जो नहीं है, जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए नॉमिनल कितना है? नॉमिनल मतलब ऐसे 2500 रुपए है, बट अगर कंडीशन बाई कंडीशन जैसे आपकी परिस्थिति सही नहीं है तो भी आपको फ्री कर दिया तो फ्री कर दिया जाएगा। यहाँ पे सब चीज फ्री है, और मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट नेताजी से बोल सकते हैं, कुछ भी हो आपकी, चाहे फाइनेंस की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सपोर्ट मिलता है आपको? जी मैम। जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट मिलता है। हाँ। अगर आप आगे निकलते हैं, किसको श्रेय देंगे? मैम माननीय नेताजी को देंगे, शरण सिंह जी को, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्था है मैम, और इस मतलब अगर ये व्यवस्था कहीं और मिलती तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए महीना देना पड़ता, जो कि हम एफर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पर जो
पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है नेताजी को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? मानते हैं सच है या सारा गलत नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी लड़कियाँ हैं, यहाँ पे है लड़कियाँ हैं। इन लोगों ने इतना माहौल खराब कर दिया कि मतलब कि जो चीज हो भी नहीं सकता, मतलब मुमकिन नहीं है उस चीज को भी। जी बिल्कुल नहीं मैम, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है सिर्फ नेताजी को हटाने के लिए। तो आप इसको षड्यंत्र मान रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, षड्यंत्र मानते हैं, क्योंकि 2018 का नेताजी का फैसला आया कि बिना ट्रायल के कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक ट्रायल नहीं देगा। अपनी मर्जी से ट्रायल कराते थे, अपनी मर्जी से चयन होता था, हर चीज इनके अकॉर्डिंग चलता था। नेताजी के आने के बाद नेताजी ने ये बंद कर दिया, क्योंकि उनको पूरे देश को देखना था। इन लोगों को बुरा लगने लगा। 2016 के ओलंपिक के बाद साक्षी मलिक बाहर नहीं गई, 2020 का ओलंपिक नहीं खेली, ट्रायल में हार जाती थी, नेशनल में वो हार जाती थी उनका कंडीशन। तो इन लोगों ने मिलके सोचा कि इनको अगर हटा दिया जाएगा तो फिर कोई हरियाणा का बनेगा प्रेसिडेंट, वो हमारे अकॉर्डिंग चलाएगा। ये सब चीज सोचते हुए पूरा परिवार मिलके नेताजी के खिलाफ बैठ गया धरने पे। बहुत शुक्रिया। चलिए आगे जाकर हम होप करते हैं कि आप नेशनल इंटरनेशनल खेलें। सॉरी, हमने आप लोगों को संडे को कसरत करा दी, आप लोगों का छुट्टी था। The word allegiance is strange. It's a vicious circle. And you can see it here.